بھی پورا لگا نہیں، خیبر کا در پتہ نہ چلا تھا کہ تھا نہیں، علی 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 یا علی، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، خیبر کا در پتہ نہ چلا تھا کہ تھا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، ہر معجزہ علی کا یقین بانٹتا رہا، ہر معجزہ علی کا یقین بانٹتا رہا، ورنہ گماں ہی رہتا خدا ہے بھی یا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، فرش زمین سے عرش بری تک علی علی، فرش زمین سے عرش بری تک علی علی، حتی علی کے ذکر سے خالی خلا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، پلٹا ہے آفتاب تو حیرت کی بات کیا، پلٹا ہے آفتاب تو حیرت کی بات کیا، حکم علی بغیر کبھی دن ڈھلا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، وصف خدا علی سے ہوئے اس طرح آیا، وصف خدا علی سے ہوئے اس طرح آیا، کہنا پڑا میں عبد خدا ہوں خدا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، دیکھو تو 6000 سے بڑھ کر ہے آیتیں، دیکھو تو 6000 سے بڑھ کر ہے آیتیں، سوچو تو کچھ بھی نقطہ با کے سوا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، قرآن میں ہر مرض کی دوا کا نزول ہے، قرآن میں ہر مرض کی دوا کا نزول ہے، لیکن مریض بغض علی کی دوا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، محفل میں مصطفیٰ کے کئی جانثار ہیں، محفل میں مصطفیٰ کے کئی جانثار ہیں، میدان میں علی
کے سوا دوسرا نہیں، شیر خدا کا حد پورا لگا نہیں، شیر خدا کا حد پورا لگا نہیں۔ وہ بارگاہ کن ہے فقیروں سے پوچھ لو، وہ بارگاہ کن ہے فقیروں سے پوچھ لو، تاخیر جس پہ ہو، تاخیر جس پہ ہو وہ در مرتضی نہیں، شیر خدا کا حد پورا لگا نہیں، شیر خدا کا حد پورا لگا نہیں۔ دیکھو ذرا جدار حرم غور سے ترا، دیکھو ذرا جدار حرم غور سے ترا، جس کو جس کو علی سے ربط ہے اس کو فنا نہیں، شیر خدا کا حد پورا لگا نہیں، شیر خدا کا حد پورا لگا نہیں۔ شیر خدا یا علی، شیر خدا یا علی۔ حیدر حیدر علی، حیدر حیدر علی، حیدر حیدر علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے۔ دیوار پہ کعبے کی یہی صاف لکھا ہے، یہ خانہ کعبہ کے دراروں کی صدا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے۔ محفل میں ملیں گے تمہیں حیدر کے دیوانے، کا حشر قصیدوں کے یہ گونجیں گے ترانے، قرآن میں ہر جا میرے مولا کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے۔ اس ذکر سے توحید کا عرفان ملے گا، قرآن بھی اور وارث قرآن ملے گا، کٹوا کے زبان اپنی یمی سم نے کہا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے۔ تیرا رجب شادی ہے اب سرور ذیشان، آغوش میں قرآن کے ہے وارث قرآن، احمد کی دعاؤں کا سیاہ خون ملا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے۔ احمد بھی بہت شاد ہے قرآن کو پڑھ کر، آتا ہے نظر چہرہ اللہ زمین پر، گلشن میں نبوت کی نیا پھول کھلا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے، حیدر کی ثنا ہے۔ نبی اپنے بھائی کو ہاتھوں پلیں گے، علی دیکھ کر مصطفیٰ کو ہنسیں گے، نظر آج آئے گا، نظر آج آئے گا، نظر آج آئے گا، قرآن پکڑ
होगा परवरदिगार। और आज की इस पुरमसरत खुशी के मौके पर दुआ करूँगा कि परवरदिगार तुझे वास्ता विलादत बासादत नूर खिलकत अव्वल मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन ऐनुल्लाह वजुल्लाह यदुल्लाह लिसानुल्लाह जमुल्लाह हुज्जतुल्लाह का वास्ता परवरदिगार तमाम हाज़रीन के हाजतों को भरला। मैदान ये खैबर का मेरा हर जिन्न बशर आके तेरे जो भी खिदमत अंजाम दी हम सब के हाजतों को भरला। बोल रहा है अल्लाह की आवाज में हैदर की सना है, हैदर की सना है, हैदर की सना है, हैदर की सना है, हैदर की सना है। बेजान बुतों को ये अली तोड़ के बोले, ये घर है खुदा का कोई आवाज न खोले। बेटा अबू तालिब का तेरी मौत खड़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन का याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, जब कभी हम आपके रूबरू हैं तो किसी ख़ास वजह और ख़ास प्रोग्राम के तहत आपके रूबरू हाज़िर होने का शरफ़ हासिल होता है। मैं इस वक्त दामने कोहे मौलाली जो वड्डी नाराम जिस मेदक डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ के जो मुतवली है मीर सादत अली शब्बीर साहब और इनका खानवादा जो इनके बरादर मौज़म मीर इनायत अली बाखरी साहब भी हैं। तो ये तमाम खानवादा यहाँ पे शब विलादत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के सिलसिले में जश्न मुनक़्क़िद किया जाता है और तमाम मोमिन व मोमिनात यहाँ पर हाज़िर होते हैं और ज़ियारत का शरफ़ हासिल करते हैं और जश्न होता है और नज़र होती है। तो यहाँ पे जनाब मीर सादत अली ख़ान शब्बीर और मीर इनायत अली ख़ान और उनके खानवादे की जानिब से नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आपको दीगर तफसीलात से आगाह कराने की कोशिश करूँगा। अब मैं हमारे इस पहाड़ अली पहाड़ जो वड्डी अनारम में वाक़ है, ये मेदक डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इसके मुतवलियान जो है मीर इनायत अली बाखरी और उनके ब्रदर मीर सादत अली बाखरी साहब हैं। मैं उनसे तमाम तफसीलात दरियाफ़्त करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद, आज हम उस मुकाम पे ठहरे हैं जिसे मौला अली का पहाड़, जिसे अली पहाड़ के नाम से और इस अतराफ़ व अकनाफ़ में तेलंगाना में इसे दरगाह बंडा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जगह है, आप लोग जानकर इस बात की हमारे आबा व अजदाद से हम जो सुनते आए हैं वो ये है कि इसकी जो तर्ज़ तामीर है वो बहमनी दौर के तर्ज़ तामीर है और साथ ही साथ कुतुबशाही दौर के अंदर इसे बहुत ज़्यादा उजागर तरीक़े से आगे बढ़ाया गया, क्योंकि तेलंगाना के एक मुकाम के ऊपर मेदक एक अहम मुकाम था। यहाँ पर 90% जायज़ातें जो थी वो नवाबीन, मख्तदार, मनसबदार और जागीरदारों की थी। उन्हीं में मेरे जद जो थे जिनका नाम मीर इनायत अली था और उनसे पहले भी काफ़ी है उनकी साहबजादी फतरू बेगम, फिर वहाँ से मुख्तार अली साहब इसके मुतवली यहाँ पर इसके मख्तदार बने और वैसे इस ख़ानदान के अंदर शिकमेदार है और मख्तदार है। मख्तदारों में जो बड़ा बेटा होता है उसके हिसाब किताब में ये ख़ानदान की तरफ से जिसको एक चलते आता है उस लिहाज से एक के बाद एक का मुंतकिल होते गया। और मैं उसके बाद मेरे वालिद मीर इफ्तिखार अली, उसके बाद मेरे बड़े भाई मीर निसार अली वहाँ पर आए थे क्योंकि वो बाहत हयात नहीं है। उसके बाद मेरे दूसरे भाई मीर हादी अली और वो भी बाहत हयात नहीं है। इसके बाद मेरा नंबर आता है मीर इनायत अली बाखरी। मेरे पास ख़ास बात यह है कि ये ख़ास तौर पे पूरी हैदराबाद के तेलंगाना के अंदर जिस तरीक़े से मेरी गुफ्तगू तरीक़े है, इस इलाक़े की, इस पहाड़ की शुरू से ही
तर्ज़ अमल से, गुफ्तगू से और यहाँ के हर साल के जश्नों का जो एहतमाम, और यहाँ आप देखें ये कमान और अंदर ये हाल का कंस्ट्रक्शन, और ख़ास तौर पे यहाँ के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर मेरे छोटे भाई मेरे सादत अली, इनकी ही मेहनत, इनका ही यहाँ पर ख़ास बात बताना है कि किसी भी फ़र्द से हमने कभी भी 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं मंगा कि कंस्ट्रक्शन के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं लिए। ये जो कुछ भी है हमारे अपने ख़ानदान से, ख़ास तौर पे हमारे ख़ानदान में मेरे भाई छोटे जो दुबई में रहते थे, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जैसे भी कमाए वो उसको यहाँ पर की, जब यहाँ की रोड बनाने का वक्त था 15 दिन हम खुद यहाँ रहकर, हम भाइयों और ख़ानदान के बच्चे मिलकर खुद ट्रैक्टर चलाकर इसकी रोड बनाए, क्योंकि इस पे आने का रास्ता नहीं था। फिर इसकी ये कमान बनाया गया मीर सादत अली साहब के अपने खर्च पे, और साथ ही साथ आप देखे होंगे कि हाल बना, इसके बाद इनके घरों से अंदर नीचे सीढ़ियाँ बनाए गए। ये सारे काम के लिए शुरू से ही जद्दोजहद में, कोशिश में इनकी रही, और अल्लाह इनमें तौफ़ीक़ात और दे। मैं चाहता हूँ कि मोमिनीन से कि ये वक्त है कि हम अपनी जो कुतुब शाहियों की मेहनत से या आसिफ जाइयों की तरफ से या बहमनी दौर से जो हमें मिला है विरसे में, मौला मुतक़ियान अली इब्न अबी तालिब के छिल्ले पहाड़ या ख़ास तौर पे इमाम हुसैन के आशुखाने, ये तमाम चीज़ों की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ ऐन है और इसकी हिफाजत करना हमारे पे फ़र्ज़ बनता है। मैं इसी तरह मैं चाहूँगा कि मेरे सादत अली साहब जिस तरह से इसको लगातार लेके चल रहे हैं, इसी के लिए हमने तमाम के तमाम हम मुत्तफ़िक़ा तौर पे ख़ानदान के जो शिकमेदार भी है, हिस्सेदार भी है, सारे लोग जो है वो सारे ने तय कर इन्हें बहैसियत मुतवल्ली इन्हें मुंतखब किया है, और हम तमाम के तमाम उनके साथ मिलकर ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारे आइंदा के भी ये कोशिश है कि जो कुछ यहाँ पर के डेवलपमेंट के अंदर है, हम खुद मौला हमें इतना अता करे कि हम खुद यहाँ के डेवलपमेंट, रोड सिस्टम, हर चीज़ यहाँ पर ला सके, ताकि आवाम के लिए यहाँ खंबे पढ़कर मैं समझता हूँ 8 से 9 साल का अफवाह है कि यहाँ पर खंबे भी पड़े, वो भी सादत अली साहब की अपनी कोशिश की वजह से यहाँ तक खंबे आ गए। अल्लाह चाहा तो मैं चाहूँगा कि लाइट भी यहाँ पर मिलेगी। आज जनरेटर के ऊपर जो रात तमाम ये 12 की रात और 13 की सवेरे तक पूरी रात यहाँ पर आमाल हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी इंतज़ामात हो रहे हैं, ये मुकम्मिल जानिब हम अपने दोनों भाइयों की तरफ से मुकम्मिल किया जा रहा है। हमारा मकसद ही ये है कि मोमिनीन की खिदमत और उनकी दुआएं और मौला मुत्तक़ियान की खुशनुदी, और कहते हैं कि मौला मुत्तक़ियान की मैं ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ, अगर कोई सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर खुश करना चाहता है तो हमें यकीनन है कि आप अली की मदहो सना कीजिए, मोहम्मद खुश होंगे। अगर सरकार दो आलम की आप मदहो सना करते हैं तो मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबू तालिब खुश होंगे। ये हमारा मानना है कि हम सुन्नत रसूल को उजागर करने के लिए और सरकार दो आलम को खुश करने के लिए, क्योंकि आज के दिन के बाद 3 दिन के बाद 16 के दिन खुद सरकार दो आलम आकर मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबू तालिब को काबे से अपने पास लिए। तो इस खुशी के मौके पर हम तमाम के तमाम यहाँ पर मोमिनीन, और ख़ास बात यह है कि यहाँ के तमाम मेरे हिंदू भाई और ख़ास तौर पे रहने वाले टांडे जो यहाँ पर के है, जिन्हें ख़ास तौर पे नायक के हैसियत से माना जाता है, जो लंबड़ी टांडे है, ये तमाम के तमाम यहाँ आते हैं और बड़ी सच्चे नीयत से हिंदू मुसलमान सारे के सारे इस दर से फैज़याब होते हैं। यहाँ का बीच नीचे चश्मा है, ये चश्मे के पानी से मेरी वालदा मरहुमा सुल्तान जहाँ बाखरी और उनकी मेरे वालिद मीर इफ्तिखार अली, जो इस यहाँ के साबिक़ा जो मुतवली भी रहे और मख्तदार भी रहे, और इन्हीं के सद में पूरे ख़ानदान के लोग शिकमेदारी की हैसियत में आते हैं। तो मेरे वालिद और मेरी वालदा की बड़ा कोशिश रही कि इसके डेवलपमेंट में काम करने के लिए। मेरे वालदा तो वडियारम से पैदल आते थे, पूरे लोगों को लेके बंडियाँ बनाकर आते थे, पैदल आकर यहाँ पर बराबर नज़र और नियाज करते थे। उसी को हम कंटिन्यू रखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह रोड हो गई है, मोमिनीन को आने जाने की सहूलत है, सारी चीज़ की सहूलत की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा भी हमारी उम्मीद है कि ख़ास तौर पे ये चैनल के ज़रिए से अपील है, क्योंकि ख़ास तौर पे ये कौम और मिलत और ख़ास तौर पे आशुखाने और क़िबलाओं के लिए ये तारीख़ी चीज़ों को उजागर करने में काफ़ी तौर पर ये चैनल अपना काम कर रहा है। हमें इस चैनल के ज़रिए से फिर मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि इस पहाड़ की ज़ियारत कर आप खुशनुदिए
सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करे, ताकि अल्लाह और उसका रसूल दोनों खुश हो जाए। माशाल्लाह। अब ये जनाब ये इनायत अली बाखरी साहब ये तमाम तफसीलात से आगाह करा रहे थे। मैं जनाब इनायत अली साहब से दरियाफ़्त करूँगा कि इस पहाड़ में जैसे कि आज की रात आपने जश्न और मुनक़िद किया है और तमाम इबादतों के लिए भी लोग यहाँ आए हुए हैं, तो ये तमाम इंतज़ाम इनके खानवादे की जानिब से मुफ्त सवारी का एहतमाम रखा गया है और तबरुकात का एहतमाम किया गया है। ये सिलसिला सुबह तक जारी रहेगा। कल भी ज़ायरीन आएंगे ज़ियारत के लिए। मैं मज़ीद ये दरियाफ़्त करता हूँ कि 17 और 18 के लिए भी कोई प्रोग्राम है आपके पास? हाँ, यहाँ पर हमारे ही ख़ानदान की जानिब से लगातार नियाज़ाएँ होती रहती है, तो हम 16, 17 के दिन 16 और 17 का भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है। दिन के वक्त में सवेरे दिन में होता है और 2 दिन के बाद वो प्रोग्राम करके, क्योंकि हम साबिक़ा में ये लगातार हम 18 को बड़े पैमाने पर करा करते थे, ये गाड़ियाँ लगाते थे, क्योंकि एक साहिब इल्म ने हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि 13 की रात और सरकार ख़ास तौर पे अमीरुल मोमिनीन मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबू तालिब का विलादत का दिन है। इसको रात में आपको रोशन करना आप पे फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि बहैसियत मुतवल्ली मीर सादत अली साहब आप इसको रोशन कीजिए, ताकि 13 की रात और 12 की रात रोशन कीजिए और 13 की सवेरे मोमिनीन को यहाँ पर अमल करने का ख़ास तौर पे आप मौका अता फराहम कीजिए। उसी के लिए हम लोग ये प्रोग्राम लगाए और हमारा प्रोग्राम अभी हमारे अपने ख़ानदान की जानिब से 2 मरतबा प्रोग्राम होता है। वो भी प्रोग्रामों में नियाज़ों में आवाम आ सकती है। ज़ियारत लगातार 2-3 दिन चलते रहेगी और मोमिनीन से मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि इस जंगल के लिए, क्योंकि तमाम फॉरेस्ट के तरफ से काम चल रहा है, हमारी कोशिश और काविशें ये है कि किसी तरह से ये मौला के पहाड़ की सेफ्टी हो जाए और साथ ही साथ मोमिनीन को आने जाने में सहूलत मिले। जज़ाकल्लाह। ये तफसीलात से आगे, और इसी पहाड़ पे शहादत की भी मजलिस होती है जो 21 रमज़ान को शहादत मौला कायनात की मजलिस कब होती है? यहाँ पर मेरे ही अपने ख़ानदान की जानिब से मीर ज़ुल्फ़िकार अली साहब और हम तमाम मिलकर यहाँ पर एक 21 की रात यहाँ पर बाज़ात ज़रब अमीरुल मोमिनीन का ख़ास तौर पे बड़े पैमाने पे मजालिस होते हैं। और 16 के दिन मेरे बड़े भाई हमेशा 16 जब को मीर निसार अली उनके फ़र्जंद इसका पूरा इंतज़ाम करते हैं। ये ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि हमारे अपने ख़ानदान से हटकर कोई दूसरे लोगों की तरफ से जो नियाज़ें होती है वो तो आम दिनों में भी हुआ करती है यहाँ पर, मगर ख़ास तौर पे इन दिनों के लिए हमारे अपने ख़ानदान की तरफ से जितना हो सके करते हैं। मगर सब में ज़्यादा यहाँ कंस्ट्रक्शन और तमाम चीज़ की जो ज़िम्मेदारी है वो मीर सादत अली साहब की तरफ से होती है और हम तमाम के तमाम ताउन करते हैं उनकी से कि यही, क्योंकि अल्लाह मौला उन्हें नवाजा है और उन्हें नवाजे तो उन्हीं की अपनी तरफ से ये कोशिशें होती है, इसीलिए हम उनके सपोर्ट में ठहरते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि तमाम ख़ानदान के लोग मुत्तफ़िक़ा तौर पे, क्योंकि मीर निसार अली साहब की औलाद है, मीर हादी अली साहब की औलाद है, ख़ुद मेरी अपनी औलाद है, ख़ुद उनकी औलाद है, ये आने वाली नस्लों को हम चाहते हैं कि ये लोगों के दिल जहन गुमान में भर दे कि यहाँ की खिदमत तुम पे फ़र्ज़ बनती है, तुम्हारे फ़र्ज़ ऐन है। क्योंकि अगर तुम्हारे को कुछ करना है, अगर वाकई तुम मौलवी है तो किसी पे बिना मांगी के, किसी के सामने बिना हाथ फैलाए के अपने कमाई हुई कमाई में से इसकी हर चीज़ अंजाम दे, ताकि हम एक मिसाल कायम रख सकेंगे कि सुल्तान जहाँ बाखरी और मीर इफ्तिखार अली की औलाद ने ये कारनामा किया। माशाअल्लाह। नाज़रीन, जैसे मैं दरियाफ़्त करवा रहा था, तमाम तफसीलात से आगाह करा रहा था, मैं तकरीबन ये जो पहाड़ का जो क़याम होके कितने बरस हो गए? मैं ये 450 साल से ज़्यादा का ये पहाड़ है, क्योंकि बैमनी दौर का इलाका जो चल रहा था यहाँ पर तर्ज़ अमल जो आप कंस्ट्रक्शन में देखते हैं बैमनी दौर का है। और एक ही बड़े बड़े सिलों के अंदर एक छोटा सा आशुखाना बना है। यहाँ पर मौलाना मुत्तक़ियान की जिस तरह से ख़ास तौर पे इल्म मुबारक का जो चस्पा किया हुआ है, यहाँ पर वो तबरुकात उस ज़माने में, जबकि यहाँ पर एक मौज़िज़ा ये है कि हमारे अपने आबो अजदाह के बीच में जिनको औलाद नहीं थी, इसी के बिल्कुल सामने ख़त्म रसूल का भी पहाड़ है जो दूसरी रोड के उस साइड आता है। ख़त्म रसूल का पहाड़ है और यहाँ पर मौला अली का पहाड़ है। इस बात का दलील है, जिस तरह हैदराबाद में कुतुब शाहियों ने
बहमनी तर के टाइप के ऊपर जब बना था वो पहाड़, तो मौला का पहाड़ और ख़ुद रसूल जिसको कुतुब शाहियों ने डेवलप कराया और उनके पास काम करने वाले उनके वज़ीर ने डेवलप किया, उसी तरह यहाँ पर भी यहाँ के हुक्मरान जो मेरे आबो अजदाद थे उन्होंने ये मौला का पहाड़ और सामे ख़ुद रसूल का पहाड़ बनाया। और अब ये दोनों इलाक़ों के अंदर हमारे अपने ख़ानदान के लोग इसकी देखभाल करते हैं, निगहदाश्त करते हैं और ख़ानदान के लोग ही इसकी खिदमत करते हैं। और इसमें हमारे ख़ानदान की तरफ से, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पर मख्ता होता है वहाँ पर एक मख्तेदार होता है, तो दूसरे जो लोग रहते हैं वो शिकमेदारी में आते हैं। तो हमारा ख़ानदान एक बड़ा ख़ानदान है जो शिकमेदारी में आता है। और हम जो ख़ास तौर पे ये है कि जो काम इनके तरफ से चलता है सादत अली साहब की, उनकी एक शुरू से ही सोच है कि मेरी अपनी कमाई, अपनी चीज़, हर चीज़ मैं अपने मौला के लिए करता हूँ। और मौला भी उन्हें नवाज रहे हैं, अल्लाह उनके और नवाजे। और साथ ही साथ मैं मुमिनीन को आज की इस पुरमसरत रात की और ख़ास तौर पे कल सवेरे की 13 की मुबारकबाद देता हूँ। और विलादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत के मुबारक मौके पर हम तमाम को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए मौला के, हम मौला के हर वो निशान, हर वो जगह, हर वो पहाड़, हर वो आशिक़ाने की हिफाजत करना हर मोमिन के लिए ये उसके वर्से में आ जाए, यही मेरी दुआ है। नाज़रीन, जैसे मैं दरियाफ़्त करने की कोशिश कर रहा था तो जनाब इनायत अली साहब बाखरी ने कहा कि ये तमाम खानवादा ही ये तमाम काम उमूर अंजाम देता है और इसी में किसी बाहर वाले का ताउन नहीं है। अगर आप नज़र के तौर पर कोई शरीक कर रहे हैं तो वो अलहदा बात है, मगर इंतज़ाम तमाम इनके खानवादे की जानिब से होते हैं। और ख़ास बात इन्होंने ये अर्ज़ की कि इसी मुकाम के मुत्तसिल जैसे कोहे मौलाली है उसके मुत्तसिल जो है ख़द्म रसूल का पहाड़ भी मौजूद है। आप देखें कि पुराने शहर हैदराबाद में भी पंजे शाह मुबारक है, उसके रूबरू ख़द्म रसूल है। जहाँ रसूल है वहाँ अली है, जहाँ अली है वहाँ रसूल है। अगर कोहे मौलाली चले जाएँ आप तो मौलाली के पहाड़ के कोहे मौलाली के रूबरू ख़द्म रसूल मिलेगा। तो ये देखते चले जाएँ कि जहाँ अली वहाँ रसूल, जहाँ रसूल वहाँ अली, ये बराबर निस्बत है। आप गौर करें क्योंकि शियाने हैदर करार बखूबी जानते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसी के साथ मैं तमाम इनके खानवादे और बरादरान से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम मोमिनीन से और नाजरीन से मैं मारूज़ा करता हूँ कि आप तमाम नाजरीन हम तमाम को इस मुबारक मौके पर और बिलखुसूस विलादत बासादत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के सदक़े में याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर सादत अली खान और ख़ादिम, और वो हज़रात जो एड्स के ज़रिए हमसे जुड़े हैं, इश्तिहारात के ज़रिए, और वो उलमा, खुतबा, शौरा और मरसिया खानान जो हमारी दावत पर लब्बैक कहते हैं, और जहाँ कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी मोमिन व मोमिनात आबाद हैं, उन तमाम की मौलूद काबा के सदक़े में जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा, हमसे हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, बिलखुसूस इस करोना वायरस का ख़ात्मा फरमा, इससे हम तमाम को महफूज फरमा, और खुदा न खास्ता इसमें कोई अलील हुए तो जल्द से जल्द उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात पेश मासूमीन आला से आला फरमा, हमारे मुक़म्मे मुक़द्दसात का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, वली असर के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको बा ईमान नासिरों में शुमार फरमा। मैं इसी के साथ रुख़्सत होता हूँ। नाज़रीन, मेरा मारूज़ा है कि अगर इसमें कोई कमी पेशी अगर कुछ में से रह गई है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इसी के साथ मैं रुख़्सत होता हूँ। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।